Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. I am Dr. Shweta and I'll be discussing the very famous theory, the Gardner's theory of multiple intelligence today. So, as we've been learning about intelligence since quite a number of days, I'm making a series on these video lectures on the topic intelligence. So today the theory that we are going to take up is a very famous theory and also one of my personal favorite theories. I enjoyed studying this theory as a student, and every time I teach this theory to my students, I simply love this theory. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वाली जो थ्योरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हर इंसान को सिखाई जानी चाहिए. सिर्फ एक एजुकेशन के स्टूडेंट को ही नहीं या एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट को ही नहीं. दिस इज अ थ्योरी दैट शुड बी टॉट टू एवरी पेरेंट, every policy maker, every administrator should know this theory because it's a beautiful theory. It respects it develops a respect for diversities. It removes the darkness of ignorance that people have, the notions, the misunderstanding that they have, that a child who is cognitively doing very well, who has good abilities to do a mathematics problem, is a super intelligent person. And if that child is not doing well in maths, the child is not a very intelligent child, or a child who is not good at academics is not intelligence. तो ये इस तरह के जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, ये वाली थ्योरी इन मिसकंसेप्शंस को दूर हटाती है. इट मेक्स अस अ टीचर or an individual or an administrator or a policy maker who believes and respects diversities and understands the fact that intelligence is not just one kind. तो एजुकेशन में हम जितनी थ्योरीज पढ़ते हैं उनका कुछ रीज़न है कि हम उनको क्यों पढ़ रहे हैं. हम उनको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. हम उनको इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम अपनी लाइफ में अपनी इन थ्योरीज को अपनी जर्नी में, अपने प्रोफेशन में यूज़ कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ, और we become an unbiased person with this critical thinking and this understanding and respect for individual differences. जितनी तरह की इंटेलिजेंसेस हैं हमें पता होंगी तो हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, अकॉर्डिंगली इवेल्युएट करेंगे बच्चों को, अकॉर्डिंगली अवॉर्ड करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, जो हम अक्सर नहीं करते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का सिर्फ या तो मेमोरी पे होता है, या मैथमेटिक्स पे, या साइंस पे, या फिर इवन सब्जेक्ट रिलेटेड, एकेडमिक्स रिलेटेड रहता है. बट जब हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंटेलिजेंस बहुत तरह की है. इंटेलिजेंस कैन बी सीन इन स्टूडेंट्स हु आर गुड एट म्यूजिक. इंटेलिजेंस कैन बी सीन इन स्टूडेंट्स हु आर गुड एट क्रिएटिंग क्राफ्ट्स. इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी सीन इन स्टूडेंट्स हु आर गुड एट स्पीकिंग or presenting or even writing poems. Intelligence is also present in those students who just are good at observing things, natural resources को जिनको वो observe कर रहे हैं. Intelligence is also present in those students who have very high who have a capability of socializing well, of maintaining good relations with each other, the ones who have good understanding about themselves. All these things are included in the theory of intelligence given by Gardner. तो ये मैंने आपको छोटा सा एक इसके ब्रीफ बता दिया, एंड ये मैं इसलिए बताती हूँ हमेशा एज अ टीचर. इन रीजंस से हम ये थ्योरी पढ़ते हैं, हमें ये पता होना चाहिए. सो जस्ट पासिंग एन एग्जाम इज नॉट आवर मोटिव, इज नॉट आवर गोल. आवर गोल इज टू अप्लाई देम व्हेन वी बिकम टीचर्स, बिकॉज ये बीएड डिग्री है. बीएड के बाद हम टीचर बनेंगे. तो जब हम टीचर बनेंगे, क्लास में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, उनकी डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंसेस होंगी, तो हमें उनको केटर करना है, उस डाइवर्सिटी को केटर करना है. दिस इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस इंटेलिजेंस. सो लेट मी जस्ट बिगिन विद दिस थ्योरी. Gardner's theory of multiple intelligences. So Gardner was a student at Howard University and he had written a book in 1983 which was known as The Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence. ये उनकी बुक का नाम था जिसमें उन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी. तो इन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो 7 तरह की होती है.
बाद में उन्होंने एक और इंटेलिजेंस को ऐड किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी को हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दिस थ्योरी देयर आर 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस दैट हैव बीन डिस्कस्ड। तो 8 तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने डिस्कस की है। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट ही टॉक्स अबाउट इज वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वर्बल मतलब कुछ बोलने से रिलेटेड या कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये वाली जो इंटेलिजेंस होती है ये उन लोगों में हाई होती है जिनकी लैंग्वेज की पहचान बहुत अच्छी होती है, या जो वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, जिनका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल, दे आर वेरी गुड एट लर्निंग लैंग्वेजेस वेरी फास्ट, दे आर केपेबल ऑफ लर्निंग अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस टुगेदर, दे आर वेरी गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग एंड इवन स्पीकिंग। उनकी रीडिंग की स्किल्स, स्पीकिंग की स्किल्स, लैंग्वेज पे कमांड, उनकी लैंग्वेज की जो क्रिएटिविटी है वो भी हाई होती है। दे आर गुड स्पीकर्स, दे आर गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, and they are also believed to be very good at humor। तो लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, उनका वर्बल कम्युनिकेशन, वो सब उनका बहुत अच्छा होता है। तो ये एक तरह की इंटेलिजेंस होती है, एंड उसको उन्होंने नाम दिया है वर्बल लिंग्विस्टिक्स। सो एज द नेम सजेस्ट्स, it is that kind of intelligence in which people have a good command over language, which is why they are able to write and read very efficiently, and they also are good at explaining things. Their sense of humor and explaining, cracking a joke, using the language effectively in presenting things, that is also very good with these people. So these people can take up those professions that require this kind of intelligence. Like a teacher should have this, generally a good teacher will have a high verbal linguistic language. All those people who are good speakers, they also have high verbal linguistic language. All the people who are poets and the ones who engage in creative writing, they also have this intelligence very high. तो वो सारे लोग इस जिनकी ये verbal linguistic intelligence high होती है, वो इस तरह के professions चूज करते हैं जिसमें वो बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, प्रोफेसर्स का प्रोफेशन है, या स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या इन जनरल कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इस तरह के जो हैं वो जो काम होते हैं वो इस इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। द सेकेंड काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज लॉजिकल मैथमेटिकल। ये वाली जो इंटेलिजेंस है ये कॉग्निशन से ज़्यादा रिलेटेड, इट इज़ मोर रिलेटेड टू आर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। एंड व्हेन आई से कॉग्निटिव मीन्स ऑल दोज मेंटल एबिलिटीज़ दैट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, रिकग्निशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, रीजनिंग, जिसमें आती है इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें जो लोग कैलकुलेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी जो दिमाग की करने की चीज़ें हैं उनमें ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में, लॉजिक में ये बहुत अच्छे होंगे क्योंकि इनकी ये वाली इंटेलिजेंस बहुत हाई है। जनरली एकेडमिक्स में इस तरह की इंटेलिजेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो ये वाली, क्योंकि एकेडमिक्स में मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो दिस इज दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट हैज समथिंग टू डू विद कॉग्निशन। ऑल दोज आर कॉग्निटिव abilities like reasoning, problem solving, attention, memory, concentration, and perception, thinking, scientific thinking, critical thinking, all that comes under cognition. All these the people who are high are good at all these things, or the people who are high at logical mathematic intelligence, they are very good at these kind of operations. ये इस तरह के कामों में बहुत अच्छे होते हैं। and our academics focuses a lot on this, which a lot on this intelligence, which I personally feel is not a very good thing, because everything in education does not center around memory or only these kind of intelligences. But now the curriculum is changing, awareness is increasing, and of course you can see the change in the pattern of our syllabus, and
curriculum, and weightage is being given to sports and music and other kinds of intelligences also, but largely still I feel the focus is lot on testing the cognitive abilities of a child, and emphasis is a lot on growing this kind of intelligence. Of course, this kind of intelligence is very important for people who choose professions of a scientist or a mathematician or even a teacher, or the ones who are interested in research. So this kind of intelligence is generally high in people who involve themselves in these kind of activities. So scientists and teachers and professors and academicians, all these people are they're high on this kind of intelligence. The third kind of intelligence is spatial intelligence. तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जिन लोगों का स्पेस का आइडिया बहुत अच्छा होता है, वो स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो स्पेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल इन चीज़ों के डिफरेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे लोगों की स्पेशियल इंटेलिजेंस हाई होती है. अब ऐसे लोगों की सेंस ऑफ डायरेक्शन भी अच्छी होगी. तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है, जिनकी ये वाली इंटेलिजेंस हाई होती है, those people are very good at making crafts and creating those products using different items, combining them, joining them. ऐसे लोग आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे होते हैं. अगर उनको एक खाली रूम में भेज दिया जाए, वो रूम को देखकर ही एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि कहाँ पे कौन सी अलमारी रखी जाएगी, कहाँ पे कौन सा सोफ़ा रखा जाएगा, तो ये रूम स्पेशियस लगेगा या अच्छा लगेगा. सो दे हैव दैट गुड सेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस और मैनिपुलेशन ऑफ स्पेस. All these people, they are also very good at imagining the spaces and doing calculations on them. So इस तरह के जो लोग हैं जिनकी ये वाला सेंस स्पेसेस को मैनिपुलेट करने का, यूज़ करने का या उससे अंदाज़ा लगाने की ये जो कैपेबिलिटी हाई होती है, उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस हाई होती है. एंड दोज पीपल कैन चूज़ टू बिकम पायलट्स, और दे कैन चूज़ नेवी एज देयर प्रोफेशन, और दे कैन बिकम, or they can create crafts and things like that. And also these people they are very good at recognizing patterns को समझना, बनाना, ये भी ये काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं ये वाले लोग. So that's what we understand by spatial intelligence. The fourth kind of intelligence is body kinesthetic intelligence. तो ये वाली इंटेलिजेंस है हमारी बॉडी से रिलेटेड. मतलब हमारा अपनी बॉडी पे, मसल्स पे कितना कंट्रोल है, कितनी फिटनेस है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वाला जो होता है, ये भी कई बार नेचुरली लोगों में होता है. सम किड्स इफ़ यू नोटिस, दे शुरू से ही, सम किड्स इफ़ यू नोटिस, दे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स. They have a flexible body, and they are very good at gymnastics, or they are very good at high jump, long jump, or playing sports or dancing. All these activities, they have a flexible body, they have a good command on their body, they have a fit body, strong body, they have well developed body structure, and they have a good sense of using their body also for all these actions. So those people have high body kinesthetic intelligence, and also their motor skills are very high developed. वो बहुत बारीकियों से भी काम को कर सकते हैं. अगर मुझसे कहा जाए कि सुई में धागा डालो, तो I do not personally have a very high that kind of मोटर स्किल इंटेलिजेंस, बट ऐसे लोगों में जनरली देखा गया है कि वो बारीकियों के काम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव अ गुड कमांड ओवर, देयर कोऑर्डिनेशन इज वेरी गुड, देयर बैलेंस इज गुड, देयर होल्ड ओवर मसल्स इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड देयर मसल्स आर वेल डेवलप्ड. सो दीज पीपल, दे कैन चूज टू बी स्पोर्ट्समैन, और they can also choose to be dancers or athletes or gymnasts. So these kind of professions are kind of very suitable for people with high body kinesthetic intelligence. Now the fifth kind of intelligence is musical intelligence. So musical intelligence, very simple. Those people who have naturally from the beginning, they have
गुड कमांड ओवर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत जल्दी बजाना सीख जाते हैं. दे हैव एन अप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक. उनको बहुत पसंद होता है म्यूजिक, सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि क्रिएट करना भी. टोन्स और रिदम्स की पहचान बहुत अच्छी होती है. दे रिकग्नाइज द टोन्स एंड रिदम्स वेरी क्विकली एंड वेरी प्रिसाइजली with a lot of detail. They are able to discriminate between various tones and rhythms, and they are able to produce content in music and participate in that. So all these people have high musical intelligence. Sometimes they can sing also well. They can create music, lyrics, all that is very good in are qualities that are exhibited by people with high musical intelligence. And it's common sense to guess that these people can choose to be singers or musicians or lyricists, and they will do very well in these professions, in such professions, the ones who have high musical intelligence. तो इस तरह के लोग जो हैं जिनकी high musical intelligence होती है वो musicians, singers, lyricists ये सब बन सकते हैं. Now I'll write down, I'll just have to rub the board a little. The sixth kind, that is interpersonal, और मैं सेवेंथ भी लिख देती हूँ इंट्रापर्सनल. तो यहाँ पे ये वर्ड है इंटर और यहाँ पे ये वर्ड है इंट्रा. तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटर से हम समझते हैं आपस का, मेरे और किसी और के बीच में, या मेरे या बहुत सारे लोगों के बीच में. और जब मैं कहती हूँ इंट्रा तो इसका मतलब मेरे खुद के साथ मेरा रिलेशनशिप. तो इंटर रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ हाउ आई डील विद अदर पीपल. सो the people who have good interpersonal intelligence, they are those people who have very good understanding about others. जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके लिए एम्पैथी भी होती है उनमें, उनको दूसरों की अंडरस्टैंडिंग है. इस वजह से उनके रिलेशंस हमेशा अच्छे होते हैं. वो कन्विंसिंग होते हैं. किसी को कोई बात बोलेंगे तो वो समझा देंगे अच्छे से. दे आर गुड एट देयर बिहेवियर. दे नो हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स. दे ऑल्सो आर एम्पैथेटिक. तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके जनरली रिलेशंस, सोशल इंटेलिजेंस भी उनकी हाई होती है एंड उनके रिश्ते बहुत अच्छे से निभते रहते हैं. सो ऑल दोज पीपल हैव हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. तो अगर आपको ऐसा कोई इंसान दिख रहा है कि उसकी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं बल्कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी करता है, इफ़ यू कम अक्रॉस पीपल, यू विल फाइंड पीपल इन सोसाइटी हु सम पीपल इन सोसाइटी हु आर वेरी गुड एट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, who do not get into conflicts, who are liked by a lot of people, who have a lot of friends, and they make friends easily. Also, they have very good convincing skills. If they say something to someone, people will believe them. People will like their company because they have high interpersonal intelligence. तो अब इसका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी प्रोफेशन से ही लिंक हो, बट ऑफ कोर्स दे कैन चूज दोज प्रोफेशंस इन विच वी रिक्वायर मेंटेनिंग रिलेशंस हर प्रोफेशन में मेंटेन करने ज़रूरी होते हैं कुछ हद तक, बट कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे सेल्स या मैनेजरियल पोजीशंस, वहाँ पे अगर आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई है तो दैट इज़ एन एडवांटेज टू यू. तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा. तो ऑफकोर्स यू कैन चूज दोज प्रोफेशंस इफ योर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी हाई. देन वी टॉक अबाउट इंट्रापर्सनल. इंट्रा मतलब खुद से क्या रिलेशन है, खुद की क्या समझ है. So there are some people who are very mature in the sense that they have a good understanding about themselves. वो confused type के नहीं हैं. उनको पता है कि उनकी strengths क्या हैं, weaknesses क्या हैं. इसीलिए उनके decisions भी हमेशा सही होते हैं अपनी life के बारे में. मुझे अगर पता है कि मुझे teaching पसंद है, मैं teaching कर सकती हूँ, तो मैंने ये profession choose किया. लेकिन मेरे अंदर अगर teaching aptitude नहीं है और मैं जानती भी नहीं हूँ और just because the others are doing it और मैंने वो profession choose कर लिया, तो इसका मतलब मुझे अपने बारे में पता नहीं था, मैंने गलत डिसीजन लिया. सो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसकी हाई होगी, उसकी सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होगी, उसको अपने बारे में सही गलत पता होगा, वो बैलेंस्ड होगा और इस वजह से वो कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा होगा और उसकी सेल्फ एस्टीम भी हाई होगी. सो ऑल दोज पीपल हु आर हाई इन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आर दोज पीपल हु सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी साउंड. दे नो अबाउट देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स एंड ऑल्सो they are balanced, more confident, less confused people.
एंड दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ लॉट, वो इंट्रोस्पेक्ट बहुत करते हैं, दे इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, एंड दैट इज वाई देयर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज हाई. नाउ नॉट नेसेसरली दिस इंटेलिजेंस हैज टू बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन. दिस इज द जनरल इंटेलिजेंस which is high in some people and not so high in some people, and but this kind of intelligence is useful to those people who want to take clear decisions in life. So it helps in taking clear decisions in life. So I am not going to relate it to a particular profession, but in general it is useful to us in our lives. But yes, most of the motivational speakers whom we look up to, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं क्योंकि वो हमें बहुत ही अच्छी सलाह दे रहे हैं, बहुत ही सटीक बात कह रहे हैं, सोल्यूशंस दे रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स की, तो जनरली उनकी खुद की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हाई होती है, इसीलिए वो हमें इस तरह का ज्ञान दे पाते हैं. सो दोज पीपल, दोज प्रोफेशंस कैन बी चोजन बाय पीपल विद हाई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. तो गार्डनर ने इतनी ही बताई थी, 7 ही इंटेलिजेंसेस शुरू में बताई थी. लेटर ऑन ही एडेड 1 intelligence to this list, and that was not this marker, naturalistic intelligence. So what is this naturalistic intelligence? You must have noticed some students, if you take them for a visit outside, some students will observe a lot of new things in the nature, and then they'll come and tell you कि मैम ये वो वाला एनिमल था ना, ये वो वाला फ्लावर था ना, because they have an appreciation, a knack for recognizing those things of nature. सो सम पीपल, तो कुछ ऐसे बच्चे आपको विजिट्स के टाइम में, फील्ड विजिट्स के टाइम में ज़रूर मिलेंगे जो आपको आके बताएंगे कि ये वाला जानवर है, ये वाला पौधा है, ये वाला पेड़ है, ये वाला फेनोमेनन इसलिए हो रहा है. उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स नेचर से रिलेटेड बहुत हाई होंगे. सो दोज पीपल हैव अ हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. दे हैव इंटरेस्ट इन थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड केमिकल्स और things that are naturally found in plants. So all these people with a knack for an appreciation and interest and observation skills for those natural things, those people are said to have high naturalistic intelligence. So those people can actually choose to become good researchers, क्योंकि रिसर्च जब हम करते हैं तो हम को नेचर में बहुत सारी जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो बिहेवियर हो या चाहे वो केमिकल्स हो या चाहे वो कुछ फेनोमेना हो या कोई नेचुरल वेदर का कुछ फेनोमेना हो या कोई भी एक्टिविटी हो जो नेचुरली हो रही है, उसको ऑब्जर्व हम करेंगे और उसको हम सोचेंगे, हम देखेंगे, तो ये रिसर्च की क्वालिटीज़ हैं. सो दोज पीपल हु हैव हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आर नेचुरली गुड ऑब्जर्वर्स एंड दे कैन एक्चुअली बिकम गुड रिसर्चर्स. बॉटनी में, जूलॉजी में जनरली जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है उनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है. तो ये जो सारे जो थे इंटेलिजेंसेस जो गार्डनर ने बताए थे, आई जस्ट क्विकली रिवाइज. नंबर 1 हमने डिस्कस किया था वर्बल लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज और बातचीत से रिलेटेड. सेकेंड हमने डिस्कस किया था जो था हमारा लॉजिकल मैथमेटिक्स, बहुत एकेडमिक्स से रिलेटेड था, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हमारे मैथ्स के सम और कैलकुलेशन, मेमोरी, रिकग्निशन, बहुत सारे कॉग्निशन जिनकी अच्छी होती है. थर्ड हमने डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस स्पेशल इंटेलिजेंस, इनका स्पेस का मैनिपुलेशन अच्छा होता है. और फिर हमने म्यूजिकल इंटेलिजेंस डिस्कस की थी. फिर हमने बॉडी किनेस्थेटिक डिस्कस की थी, जहाँ पे आपके बॉडी के ऊपर कमांड, मसल्स के ऊपर कमांड, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं. देन वी हैड डिस्कस्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की समझ, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, रिलेशंस अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं. देन वी हैड डिस्कस्ड इंट्रापर्सनल, सेल्फ अवेयरनेस हाई होती है, अपने आप को पहचानते हैं वो लोग, अपनी समझ होती है, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. सो दैट वी डिस्कस्ड एंड इन द एंड वी डिस्कस्ड नेचुरलिस्टिक, नेचुरल चीज़ों के लिए, फ्लोरा फौना के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, जो नेचर में चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करना, इवन बिहेवियर को भी, नेचुरल बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करना, उस पर रिसर्च करना, उसमें इंटरेस्ट लेना. ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं जिनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है. तो इस थ्योरी में हमने 8 तरह की इंटेलिजेंसेस पढ़ी हैं, लेकिन सैडली अभी भी अगर किसी बच्चे के अंदर ये सारी बाकी इंटेलिजेंसेस हाई हैं, लेकिन पुअर किड डज नॉट हैव अ हाई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एज वेरी हाई इंटेलिजेंस, दैट किड विल बी लेबल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ एज अ नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो ये मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन लगता है, एंड इसलिए मुझे लगता है कि ये वाली थ्योरी जो है ये पढ़नी चाहिए सबको.
हो सकता है आपके क्लास में ऐसे बच्चे हों जो इसमें अच्छे हों या इसमें अच्छे हों, इनमें अच्छे ना हों, तो आप उनको लेबल नहीं कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आप लेबल कर रहे हैं तो या तो आपकी इवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम है या टीचिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम है या आपके आइडेंटिफिकेशन के पैरामीटर्स ही गलत हैं, जिन बेसिस पे द पैरामीटर्स ऑन विच यू आर असेसिंग द इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, that is horribly wrong if you are labeling them not intelligent on the basis of just one or two categories or parameters. So that is a very strong implication of Gardner's theory of multiple intelligence. So let's discuss in details about what we can draw, what implications we can draw from the Gardner's theory of इंटेलिजेंस। ये मैं अलग से अच्छे से इसको डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, तो पहली तो हम सिंपल सी ये बात बोल देंगे, एकदम बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज़ कि भाई 8 तरह की इंटेलिजेंसेस पढ़ाई हैं, तो ये सारी टाइप की इंटेलिजेंसेस हमको डेवलप करने की कोशिश करनी है। अगर हम एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं तो वी विल कीप इन टू अकाउंट दीज 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि ये 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेज होती हैं, हमें पता होना चाहिए एज अ टीचर। हमें सिर्फ 1 या 2 नहीं पता होना चाहिए, हमें ये ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंटेलिजेंस होनी चाहिए अबाउट दीज 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, और इसी माइंडसेट से हम क्लास में जाएंगे। और हमें ये सब तरह की इंटेलिजेंसेस को बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दीज 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, वी हैव टू प्री प्लान आर teaching and learning processes, which includes everything, which includes deciding the curriculum, which includes deciding the textbooks, which includes deciding the evaluation, that includes deciding the teaching methods. Everything has to be decided considering that there is not just one kind of intelligence but 8 kinds of intelligence. So this is the pre-planning that you have to do, keeping these 8 kinds of intelligences in mind. The second thing is very important thing, identification. You have to identify as a teacher which student is exceptionally good or is good at what kind of intelligence. तो ये आपको करना है, क्योंकि आप एज्यूम नहीं करोगे कि सारे बच्चे जो हैं वो सब एक ही चीज़ में अच्छे होंगे। सो जो 8 तरह की इंटेलिजेंसेस हैं उसमें कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। वो आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? आप या तो इवैल्यूएट करोगे उनको, अब इवैल्यूएट क्या एक एग्ज़ाम देके आप इवैल्यूएट करोगे? अगर आपने उनको एक टेस्ट दे दिया और आपने सिर्फ उनकी मेमोरी टेस्ट की और बता दिया कि इसके 20 में से 18 आए हैं तो ये इंटेलिजेंट है और उसके 5 आए हैं 20 में से तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, देन दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ इवैल्यूएशन। For identification, for evaluating in the right way and finding out who is good at what kind of intelligence, high on what kind of intelligence, you need to give them several kinds of activities. You'll give them a musical activity. Person who does well in that has high musical intelligence. You will give them some craft to make or a room to decorate. The student who takes a lead in that and gives the best ideas has high spatial intelligence. You will give them some debates and discussions or some presentations to do. A student who performs very well, shows exceptionally good vocabulary or shows an exceptional skill of presentation is good or high at verbal intelligence. तो आपको बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी इवैल्यूएट करने के लिए उनको। ऐसे क्लास टेस्ट ही नहीं रखोगे जिसमें आप खाली एग्जाम ले रहे हो 20 में से 50 में से कितने आए। वो यूज़ होगा टू फाइंड आउट लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, लेकिन आपको उनको म्यूज़िक की भी एक्टिविटी करानी है, स्पोर्ट्स की भी करानी है, आपको उनको ग्रुप डिस्कशंस, टीम वर्क कराना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके सबसे ज़्यादा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं। जो लीडर है, जो सबको समझ रहा है, सबको अरेंज कर रहा है, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में ऐसे जो सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्ले ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारे डिसीजंस ले रहा है, इसका मतलब उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई है। और आप ये भी आइडेंटिफाई करते हो कि कुछ बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं, दे टॉक इन अ वेरी मैच्योर वे, दे आर वेरी रिजॉल्व, दे आर वेरी they don't have much issues, they take sound decisions, so those students have high intrapersonal intelligence. So ये सारी intelligences को identify करने के लिए भी you have to have evaluation methods including activities of various kinds.
For music, sports, creative writing, you have for making crafts or decorating classrooms, you have to include so many kinds. You have to also take them to fields. Let them note down what did they see. Let them write a note on how was the experience when they went out on a field, for a field visit or a museum or a park. Let them write down or let them speak. You will be able to identify those students who come up with something new. जिस बच्चे ने वो चीज़ बताई जो किसी ने नहीं बताई, उसने वो ऑब्जर्व करके आपको बताया, तो इसका मतलब उसकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो हाई है बाकी बच्चों. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दीज काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस व्हेन you are teaching in a classroom. The third very important usefulness, I would say, is this helps in reducing discrimination. ये तो बहुत ही important है. जब हमें पता है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ में इंटेलिजेंट नहीं होंगे और आपके दिमाग में वही आइडिया है इंटेलिजेंस का कि एकेडमिक्स में जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं वही इंटेलिजेंस है, भले ही बाकी स्टूडेंट्स उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो म्यूजिक में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, लेकिन आपका बिहेवियर सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ अच्छा है या आप सिर्फ उन्हीं की तारीफ कर रहे हो और उन्हीं को अच्छे की कैटेगरी में रख रहे हो या इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रख रहे हो जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो इसका मतलब यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग एज अ टीचर बिटवीन स्टूडेंट्स इफ योर ways of assessments or evaluation are based on only single parameter of your choice. If your parameters of evaluation are based on all these kinds of intelligences and your behavior is also based on that, your appreciation, your reinforcements are based on good performance in all these kinds of intelligences or these activities, then you are an unbiased teacher. Otherwise you will end up discriminating. The students will feel discriminated. So ये एक और एक हो गया in reducing discrimination. And this theory also helps the teachers decide the curriculum for giving various kinds of opportunities. तो हम different तरह के teaching methods evolve कर सकते हैं to grow various kinds of intelligences. If your classroom has students with good musical abilities or good musical intelligence, you should encourage them to take up activities related to music. You should actually include them in more activities in music rather than academics or sports or something in which they are not very good at. But in general, your curriculum should give enough opportunities for development of all these skills in students. The ones who are good at what will naturally select those, perform well in that, and that is how our report cards should be like. Of course अब चेंज आ रहा है धीरे धीरे हमारे रिपोर्ट कार्ड्स में, अब इन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी आता है, मेंशन होता है कि द स्टूडेंट इज़ गुड एट स्पोर्ट्स, द स्टूडेंट इज़ गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, ये मेंशन ज़रूर करना चाहिए. एंड देन वन मोर थिंग दैट आई फील, support the students. If a student is good at sports, he or she, there are chances that he or she may be missing out on a few classes for practicing, because as a teacher मेरे क्लास में भी ऐसे बच्चे होते थे जो थोड़ा सा लेट आते थे क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे बास्केटबॉल की. पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि आप क्लास में लेट क्यों आते हो, बट बाद में मुझे पता चला कि वो प्रैक्टिस कर रही थी फुटबॉल के लिए एंड शी वॉज पैशनेट अबाउट इट. So I allowed her some time and मुझे इतना गुस्सा फिर नहीं आता था उसके ऊपर. So I tried to support her and later on in some months she got a trophy for the university in that sport. So that is what I am trying to say, that a little bit of support you have to provide. Now support खाली extra time दे के नहीं होता या free class दे के नहीं होता. You have to understand that child. If that child is unable to perform 100% well in academics, give that relaxation, because that the child's energy and enthusiasm is going into a different direction, which is not a bad direction. So you have to encourage that. You do have to counsel that student ki studies are also important, but I have seen a lot of parents and teachers, they are forcing the students or their children to quit those sports or music or those activities because studies hamper ho rahe hain.
दिस इज़ नॉट अ वेरी करेक्ट अप्रोच. अगर आपके बच्चे की या आपके स्टूडेंट की कुछ एक्सेप्शनल एबिलिटी है, एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस हाई है, जिसकी वजह से वो वाली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, let that child go and do or pursue that hobby or that activity, and your job is to encourage that student and not put a pressure of academics on that student continuously. नहीं तो इस country में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर बनने फिर बंद हो जाएंगे. That is what I wanted to discuss as part of educational implications in Gardner's theory. So it's a beautiful theory. Please, when you become a teacher, do apply this theory in your profession. Thank you so much.